मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर का रोल भी जानना चाहूंगी टू मेक इंडिया द सुपर पावर दैट वी आर इमेजिनिंग। तो उनका चार्ट क्या कहता है? See, let's understand there's a chart of Modi ji जो कि बहुत popular है, but I've seen other charts also, oath taking time, other charts. Contrary to what people say in podcasts, and मैंने बहुत सारे सुने हैं कि मोदी जी is 1 year is left, or I feel he will remain the prime minister till the end. उनकी हॉरोस्कोप में और oath taking time में ऐसा combination है that he will never leave he will be उनकी जो कुर्सी है वो हटा नहीं सकते, खुद छोड़ दे अलग बात है। जैसे गुजरात के सीएम में थे, he left to become the prime minister of the country. So his chart is so powerful and his times in which he is taking oaths, I've analyzed all that. तो वो इतना powerful है कि उनको कोई हटा नहीं सकता है। तो as far as my prediction is contrary to most of that he will remain the prime minister of the country in 2029 also, and he at least till 2031-32 का जो टाइम फ्रेम बताया है, वो जो चेंज आएगा वर्ल्ड के अंदर when India will become, he will be a part of that. तो मतलब मोदी जी का बहुत बड़ा रोल। तो अभी तो लोग कह रहे हैं ना 2026 में चले जाएंगे, ठीक है, केतु की आ रही है, अंतर आ रहा है ये, मगर केतु एक ऐसा प्लैनेट है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्लैनेट टू अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी स्ट्रांग कार्मिक प्लैनेट जो कि बहुत दे भी सकता है, बहुत ले भी सकता है। मेरे हिसाब से मोदी जी का जो केतु है, इट इज गॉट द पावर टू गिव। उनका शनि शुक्र भी, अगर उनकी डेट भी ठीक है, डेट ठीक है, I mean date of birth, year of birth is right and month is right, तो उनका आत्म कारक और अमात्य कारक दोनों एक साथ हैं, and that is Shani and Shukra. So I mean, Shani is his atma कारक, and amatya कारक, they are together. They are together, and that too in the 10th house. And उनकी भी जो horoscope है, Mangal is very powerful, Rahu is very powerful, and that tallies with the horoscope of the nation. क्योंकि nation कौन चलाता है? It is the leaders. Consciousness produce भगवान जो भी कराता है, it is through us, through people, through souls. So as far as I'm concerned, his horoscope is extremely strong. He will win the next elections also. 2029. We are sure about that. I'm sure about it. Modi ji will win elections. Astrologically, it is my prediction, Shankar Adaw's prediction, that he will remain, he will win 2029 elections, and 2031-32 जो transformation जो हम दिखा रहे हैं वो होगा, and all these things of making India a military power, very tough decision, very tough policies, all this he will take. When he does, when a person does all this, तो टेंशन भी होता है। आदमी 10 डिसीजन लेता है, उसमें हर 10 out of 10 थोड़ी हो जाता है आपको। You don't score. Even if you score a distinction, you are getting 75%. और criticism भी आता है इधर उधर। All that may happen. That may happen. So that next is going to be a tough year where he will take tough decisions. And also there will be, he will tell the country कि भाई आ जाओ, अगर आपको मतलब if you want to, I mean, talk with me on my terms. That is what Rahu says. Yes. That is what Mars says. भाई तुम्हें बैठना है तो हमारे आमने सामने बैठो। और राहु जो होता है वो होता है प्लैनेट आपका कराता है काम। तो केतु इज अ प्लैनेट व्हिच सेज कि हम स्पाई डिटेक्शन, इंफॉर्मेशन, डिप्लोमेसी। So both these planets are getting activated in his chart as well as in our national chart also. So केतु जब होगा तो ये दोनों चीजें बहुत स्ट्रांगली करेंगे। तो वन साइड देयर विल बी डिप्लोमेसी, ऑन द अदर साइड देयर विल बी आल्सो ही विल से कि हाँ सामने आके बात करो। एंड हिज चार्ट इज स्ट्रांग इनफ टू, उन्हें कोई हटा नहीं सकता, टू बी the prime minister. He will be the next prime minister also in 2029 and 2031-32 तक तो मैंने देखा है उनका, he will be. तो सर अगर मैं कंक्लूड करूं ऑडियंस के लिए कि मोदी जी का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा रोल होगा टू मेक इंडिया द सुपर पावर, जो कि हम इमेजिन कर रहे हैं 2032 तक। यस, जब शनि रोहिणी नक्षत्र में होगा करीब करीब, that is also time when people can talk कि महाभारत के टाइम ऐसा हुआ था एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ सर, कहते हैं कि ऐसा वो प्लेसमेंट्स काफी सिमिलर है, देश काल परिस्थिति भी देखना चाहिए। so that it won't be महाभारत but there will be some, उसके बाद चेंज आता है। सर वो चेंज क्या है, जिस कॉस्मिक शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं 2032 के बाद क्या होगा? जैसे इंडिया को कहते हैं कि इंडिया अध्यात्म और धर्म की धरती है, एंड आई थिंक सबसे बड़ी सुपर पावर जो इंडिया की है वो कहीं ना कहीं यहाँ का जो स्पिरिचुअल एक्सपेंशन है, धर्म है। तो इसका क्या रोल होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग बाहर से आकर
इंडिया की स्पिरिचुअलिटी और धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं? मैं दोनों चीज देख रहा हूँ इंडिया में, टेक्नोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। Yeah. तो दिस एक एरा ऐसा आएगा, इस जो एरा आएगा, इट विल बी टेक्नोलॉजी विद स्पिरिचुअलिटी। तो इन द सेंस कि लोग इंडिया में क्या है, इंडिया में हमारी जो टीचिंग्स है, मेथडोलॉजीज है, चाहे यंत्र कह लो, मंत्र कह लो, तंत्र कह लो, उपनिषद कह लो, दे आर ऑल टेलिंग यू मेथड्स टू आपको कुछ अचीव, मेडिटेशन कर लीजिए, क्रिया कर लीजिए। तो ये देयर इज साइंस बिहाइंड इट। इट इज नॉट कि आप देयर इज नो साइंस। सो इंडिया विल बिकम अगेन, दीज थिंग्स विल बिकम इम्पोर्टेंट एंड टेक्नोलॉजी विल बिकम इम्पोर्टेंट। इन दोनों का समावेश होकर इंडिया विल बिकम अ वेरी बिग पावर कि लोगों को बताएगा और लोग हमसे समझने आएंगे। दैट विल बी देयर, बट ऑल्सो इंडिया विल बिकम अ कंट्री विच विल बी अ रिच कंट्री, रिच इन टर्म्स ऑफ मनी, टेक्नोलॉजी, लॉट ऑफ थिंग्स बाय 2030-31। उसके बाद एक बहुत अच्छा अध्याय है। पर राहु की जब दशा आएगी इंडिया की 19 साल की, राहु will give materialism and will give lot of other things also। कि राहु खाली materialistic planet नहीं है जी, राहु बहुत चीजें और भी देगा। I think राहु spiritual भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो अमृत तो है ना। It always gives both the things। So राहु was अगर आप स्टोरी भी जानते हैं तो राहु को ये पता था कि विष्णु जी लेके जा रहे हैं, उसके अंदर अमृत था। He could have आप जाके वो छीन सकते थे, कुछ बवंडर मचा सकते, कुछ भी कर सकता था, बट राहु वांटेड टू अंडरस्टैंड कि मैं इन देवताओं के ऊपर भी कैसे जाऊं जी। सो ही क्वाइटली स्टूड देयर, यस, वेरी स्ट्रेटेजिकली। हाँ, एंड राहु को जब हटाया, राहु केतु को, देयर आर टू पार्ट्स एंड विष्णु जी हैड अ बिग फाइट विद राहु फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो नहीं मार पाए थे राहु को। फिर उन्होंने वरदान दिया, केतु ने अपना मुंह दूसरी तरफ करा, देन ओनली विष्णु जी कुड राहु को ही कुड। तो राहु इज इटसेल्फ अ वेरी पावरफुल प्लैनेट, बोथ इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज टेक्नोलॉजी। तो दोनों चीज़ों का समावेश जब राहु की दशा इंडिया में आएगी विल बी देयर, बिकॉज राहु एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल हॉरोस्कोप इन आवर चार्ट। वाओ सर, अगर हम वॉर लाइक सिचुएशंस की बात करते हैं तो मैं दूसरी कंट्रीज का रोल यहाँ समझना चाहूँगी। पाकिस्तान ओपन एनिमी, 7th हाउस एक्टिवेटेड, ओपन एनिमी विद पाकिस्तान, आउटलुक यही रहेगा। और उसके साथ मैंने आपको बताया भी 2026 विल नॉट बी गुड। चाइना में जो एक्टिवेट होता है प्लैनेट इंडिया को राहु के साथ, उनका प्रचार देखो, इट विल बी अ हिडन एनिमी। China will be hidden enemy, okay. And that is what I see if you look at both the charts. Superimpose the chart of China and Pakistan. Okay. USA के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं होगी, but it will be a kind of a hot and cold relationship, जहाँ की वो कभी अलायंस भी करेंगे और कभी ट्रीटी भी करेंगे, और टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ट्रम्प एंड जियोपॉलिटिक्स, आई ट्राई टू से कि भाई 2026 में दैट जो उनका पकड़ है एंड जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। रशिया आई फील विल रिमेन एक अपना हमारा एक दोस्त, विल इमर्ज एट द एंड इफ यू जो भी हो बीच में 2030-31 में इट विल रिमेन टू बी अ कंट्री। UAE will be a place which people may say anything, but I will see it will remain a very neutral country and हमारे साथ positive business and trade करके it will have a this thing। तो एक होगा कि इंडिया will एक assertive super power, एक पावर बनेगी जो अपने आप को assert करेगी। Military turmoil I see very clearly, and दिस इज द मेजर ग्लोबल एंड इकोनॉमिक शिफ्ट विच मैं देखता हूँ। और क्योंकि हमारे जो चार्ट में हमारा जो राजा है वो गुरु है, तो जब राजा गुरु है और मंत्री चंद्रमा है 2026-27 में, तो राजा गुरु है, मंत्री चंद्रमा है, वेल्थ का राजा सूर्य है और एग्रीकल्चर का राजा मंगल है। तो जब भी राजा गुरु होता है और मिनिस्टर चंद्रमा होगा, तो और जो हमारे जो नेटल जो दशा है राहु मार्स की, दैट विल डोमिनेट, क्योंकि गुरु जो होता है ना वो एक ब्रॉड आउटलाइन दे देगा कि ये करिए, और गुरु अतिचारी है। तो दिस इज वेयर आई सी द प्रॉब्लम। एंड मंत्री चंद्रमा है, तो चंद्रमा जो है ना वो कभी क्लैरिटी से कुछ चीज़ नहीं बताएगा, वो बताएगा ये भी कर लो यार, वो भी कर लो, वो भी कर लो, अभी रो लो, अभी हंस लो। राजा जो गुरु है वो हमको सो द इम्पैक्ट ऑफ मार्स एंड राहु will be very very high, and that will lead to
2026 will be the fulcrum of change for India and for the world. Wow. That is And India will remain very powerful, very as you powerful. said. And then again, I've told you about our Prime Minister's chart. Yeah. He will remain, Yeah. irrespective of what so many podcasts are saying. He will remain the Prime Minister. He will become stronger. And 2029, again, he will again वापिस आएंगे to this thing and lead India to a very strategic position. His horoscope, it is destined. Wow. Unless, and that also with a caveat, I say, there is, जैसे पुराने ग्रंथ पढ़ो तो उनके जो वो टेकिंग टाइम एक्सेट्रा देखो, ही विल नेवर, उनसे कोई पोजीशन ले नहीं सकता है अगर अपने आप छोड़ दें हाँ, तो अपने आप छोड़ना होगा। यस That's- वाओ So that is what